Dushyant, I think I am meeting you for the first time. Yes, ma'am. Okay. Why earlier notifications you didn't get? No, I was busy with something, so I could not join. Sorry about that. Oh, that doesn't matter. Just give me an idea what you are doing these days. I'm a software consultant, and recently resigned from JP Morgan, Okay. and I'm started my own consultancy. Okay. Yeah, and Okay. also learning. How come you are interested in music? Yeah, so also I'm learning vocal from a local guru here. So wanted to know, the theoretical Okay. part as well. So yeah, Good. Where do you stay? I'm at Borivali, Mumbai. Oh, that's good. Okay. I do not know how this caption thing has started working. How to turn it off? Okay, here. Yeah. Um, there's another person here. I am seeing her for the first time. I think. What's Yeah, her yes, name? ma'am. I'm Vinaya. Good evening, ma'am. Yeah, Vinaya. Yes. Actually, last year Yes. You I are also joined, coming for but the first time? yes, I got notification this time only. Actually, I joined last year, but I could not come to come for counseling last year. Have two small kids, ma'am. So, Yeah, uh, I understand. uh, I understand. Where do you stay? Hyderabad. Okay. Okay. I'm a homemaker, but recently joined as a receptionist in St. Peter's Engineering College. And music background, ma'am, Okay. since I'm 11 years old, I'm learning Carnatic music. And from my aunt Okay. side, and after marriage in 2016, for 2 years I learned Hindustani music from ma'am from Delhi, Acha. Dr. Asmita Mishra. So just know some basics, ma'am, not. From Delhi. Mhm. Okay. So I thought of getting a certificate at least. Thinking that way, I joined last year, but I could not. Okay. That's fine. Uh, Okay, okay. No, mhm. earlier this facility was not there. So uh, those people who have joined last year, I called them by mail because earlier this facility was not there. So yes. the what happened that people, one or two person applying from different part of this country could not get counseling classes. So this web counseling has started for the class of certificate in Hindustani music just in the month of March. During the lockdown, they were, it was a compulsion to get back to web counseling. So we started web counseling, and when it started working properly, then I thought that I should call everybody from the last year also who could not complete their certificate courses, but they have deposited their fees, etc. So I thought that let us call all of them. That is why I mailed. Okay, ma'am. Understand. It's a lucky thing for us, for people like me, ma'am. Mainly. Thank you, ma'am. Yes, sure. And not Uh, only for you, for us as a teacher also. It was very, very frustrating to see that people are applying for the course but couldn't get the counseling. So
now right now we are allowed to do counseling from home. Like one session we have already done with counseling from home, and it was conducted successfully. So that is why university accepted this web counseling as a part of counseling, and now you can do it very well. Are you able to open the portal, Dushyant and Vinaya? Yes, ma'am. No. Yes. Yes, ma'am. Vinaya, you can. Okay. Yes. Nikhil, okay. Hello. Nikhil, am I seeing you for the first time? या मैम, एक्चुअली मैं इसी हफ्ते शायद ग्रुप में आया हूँ। उससे मतलब अप्लाई मैंने कर दिया था, अच्छा, लेकिन अभी अच्छा, ग्रुप में ऐड किया गया है मेरे को लास्ट वीक में। या अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताएंगे? ओके, सो आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। मैं परफॉर्मेंसेस करता हूँ, प्लस आई एम एजुकेटर। आई एम वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूजिक बस्ती, वेयर वी वर्क विद kids at risk, underprivileged children होते हैं म्यूजिक के थ्रू, उनमें लाइफ स्किल्स डेवलप करना। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हमारे साथ कुछ कोक स्टूडियो का आर्टिस्ट भी है। शासकीय देहात से कर रहे हैं आप? सॉरी, ओके, शासकीय देहात, शासकीय राव, शुभेंद्र राव। म्यूजिक बस्ती इज फ्रॉम दिल्ली ओनली, नो? हाँ, म्यूजिक बस्ती दिल्ली से ही है। अब तो पूरे वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इनेबलिंग लीडरशिप के अंडर आ गया है, जो हमारे पहले डोनर हुआ करते थे। अच्छा, सो हाँ। वेयर यू आर? सॉरी, अच्छा, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ, आप दिल्ली। कहाँ से बात कर रहे हो? दिल्ली। आपने सूरजकुंड सुना है? सूरजकुंड मेला, मैं वही उसके पास ही रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो बस वही सूरजकुंड। Good. So you have already done music and you are already a music educator. What you are looking at for this in this course? What is your expectation? वेस्टर्न म्यूजिशियन हूँ मैं टेक्निकली, ठीक है, मतलब, और सेल्फ टॉट म्यूजिशियन हूँ। मैंने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं मतलब म्यूजिक की। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने क्लासिकल म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट लिया था, लेकिन तभी मेरा कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो बस मेरे साथ ये कि जहां से मैं सीख सकूं, मैं वहां से सीखना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, कि कहीं से भी। तो मैं अभी यहाँ लॉकडाउन में था, प्लस मैंने मतलब मेरा एक ऑनलाइन म्यूजिक स्कूल भी है, अभी मैंने स्टार्ट करा है रिसेंटली, ठीक है, और अपने म्यूजिक बस्ती के टीचर्स के साथ मिलकर। उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ऑल ओवर कंट्री है। तो मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पे आप क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा सीख लिया जाए, क्या जा रहा है। तो जहाँ से जो इसके बाद अब मन कर रहा है कार्नाटिक म्यूजिक भी सीख लूंगा। तो ये जहाँ से सीख सकूं मैं सीख लेता हूँ, ये है मेरे साथ। good. Okay. Rohit, are you new? Am I seeing you for the first time? रोहित कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। Okay, so how many of you have completed your quizzes? I've done it. I have. I don't know about Okay. others. Okay, you have 1 day more, Nikhil, and 2 new people more. Nikhil, can you access the portal properly? Yes, ma'am. हाँ, वो हो रहा है। ओके, तो ठीक है। उसमें एक क्विज पड़ा है, आप क्विज देख लीजिएगा। बहुत ही बच्चों वाला क्विज है, बट डू इट। इट्स अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट। बिल्कुल। एंड इट मे कॉम्प्लीमेंट योर नॉलेज। सो दैट्स इट। क्विज कंप्लीट कीजिए। और मैंने देखा अभी तक किसी ने असाइनमेंट में हाथ भी नहीं लगाया है। सो what about the assignments? Yeah, मैंने सारे असाइनमेंट लोकल पोर्टल पुणे सेंटर पे अपलोड किए हुए हैं। So that's the
update from किसमें किया? I couldn't get you. regional office, regional center Pune. नहीं, आप जो आपने असाइनमेंट आपको मिला कहाँ से? मिला मुझे पोर्टल से ही। हाँ, पोर्टल पे। अच्छा, गूगल पे आपने नहीं किया ना? ओके, तो प्लीज उसमें देखिए बहुत साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप अगर गूगल फॉर्म पे नहीं कर रहे हैं तो पीडीएफ में करके और उसको cpahm@ignu.ac.in उस पे मेल कर दीजिए। मैम, क्या हम ड्राइव पे इसको तीनों को साथ में अपलोड कर सकते हैं अगर क्वांटिटी ज्यादा हो, साइज ज्यादा हो? हाँ, कर सकते हैं ड्राइव पे, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। उसमें जितना दिया गया है उतना ही करो, नहीं एक्सेस मत करो। नहीं, फाइल साइज सॉरी, मैं क्वांटिटी मतलब फाइल साइज, हाँ, बढ़ फाइल गया। साइज ज्यादा है तो ड्राइव में कर दीजिए। ड्राइव ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, सभी लोग जिसका भी अगर फाइल साइज बड़ा हो जाता है फोटोज अपलोड करने के लिए, तो अगर बड़ा हो गया तो गूगल ड्राइव में आप शेयर कर लीजिए। हाँ, तो so that it comes directly to me. You know what, Dushyant? If you upload the thing in the RC portal, RCs are not linked with this program anymore. It is totally being controlled by myself in the headquarter. So it is better that you send through mail to cpahm@ignu.ac.in, or you can simply share it with the Google Drive of CPAHM. Okay. तो ठीक है, अभी मैं OMU 001 के कुछ कंपोनेंट्स ले लेती हूँ। जो बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने का इसमें, थ्योरी क्लास लेने का इसमें नहीं है। मतलब कोर्स ऐसा डिज़ाइन है कि जिसमें थ्योरी क्लास बहुत ज़्यादा नहीं है करने का। फिर भी मैं थोड़ा सा नाद के बारे में बात कर चुकी हूँ पिछले क्लास में। अब मैं नाद से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, लेकिन जो मैंने पिछले क्लास में किया था उसको मैंने थोड़ा सा पावर पॉइंट में, फिर बाद में वीडियो में वो किया था, ट्रांसफर किया था। उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। आपको दिखाई दे रहा है ना? हेलो? नॉट येट। नहीं दिखा? जी नहीं। एक सेकेंड। अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ मैम। ओके। मैंने आपसे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने सबने अपने अलग अलग तरीके से जवाब दिया था, जिसमें कि many of you has told that that music is a form of expression, but choose as many words as you can associate with music. I like to choose words. You choose words like, is it study, sound, words,
read, sports, card, gaming, cooking, listening, harsh, cacophony, pleasing, soothing, tense, displeasure, arts, aesthetic pleasure, magical power. Can we Now go tell, one by one yes, by one, एक एक sure. करके? I'll call your names. Wait a minute. Okay. Uh, yeah. Yes, tell me now. Nikhil first. जो इसमें वर्ड्स मैंने देखे, साउंड, प्लेजर, सूदिंग, उसके बाद कैकोफनी, ठीक है, रीड, डिस्प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर, टेंस, प्लीजिंग, लिसनिंग, ये सारा मैं आर्ट्स म्यूजिक रिलेट कर सकता हूँ. Next person. Tell me who is the next. नमस्ते मैम. हाँ बोलिए. आर्ट्स में बोलना चाहूँगा. आपको सिर्फ आर्ट ही लग रहा है कि आप आर्ट के साथ में रिलेट कर सकते हो. Is it so? अच्छा. दुष्यंत. यस मैम. मुझे लगता है स्टडी, साउंड, रीड. If you look at the Western music notation, or so you can also say read, gaming, listening. Harsh can be an expression of music. Pleasing, soothing. Arts, of course. Yeah. Next. Sharmila. Yes, ma'am. Tell me how many words you can find. I would like to choose the first one is word, because no words, if there is no word, there will be no expression. First is word, then second study, sound, magical power, listening, and aesthetic taste. That's all. Okay. Shubham. Yes, ma'am. I'll first talk about study, because obviously we are studying right now about music. Then we have sound, because without the presence of sound, music is not possible. Then we can also go for words, because all the lyrical music that we listen to contain words. And after that, we also read the music notations, or the things that we have to perform. Then I'll say listening as well, because we listen to music. There is a pleasing side of music. The music suits us. Then music is an art form. Then there is. Yes. Then I also believe that there is magical power in music as well, because we have heard stories of how Tanseen used to perform Mia Malhar, and it used to rain at that time. And also we know about the music therapy, which is used to treat have like psychological problems, or kind of, it is also a form of treatment for people who need relaxation in form of music. So yeah. Yeah. Good. Ma'am. Vinaya. Ma'am, I got interrupted somehow. I wanted to give my list out. मुझे लगता है words, sound, cacophony, harsh, pleasing, soothing,
स्टडी, क्योंकि नोटेशंस और म्यूजिकल शीट को जब म्यूजिक डायरेक्टर्स पढ़ते हैं तो इट इज स्टडिंग एंड रीडिंग. Magical power, definitely, because music has a lot of magic in it, and it is also spiritually this thing for us, conducive for us, soothing, aesthetic pleasure. जब हम राग गाते हैं, when we sing ragas, it gives us aesthetic pleasure, because we perceive not just sounds, in the form of sounds, so not just in the form of audio, but something beautiful, something aesthetic. We can even paint a picture with our mind when we listen to certain sounds. So art, tense, pleasing, soothing, displeasure, cacophony, harsh, pleasing words, listening. So yeah. Thank you, Sharmila. Thank you. 1 second. Yeah. Sorry. So, आई थिंक सबको बारी बारी से पूछने की जरूरत नहीं है. मैं जो मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा. मैम, हाँ संगीता. what is cacophony in music? Cacophony in music, तो you cannot say. We are. They is have it a Western term? No, कैकोफोनी के साथ में इंडियन म्यूजिक का कोई संबंध नहीं है. बट मैंने ये एसोसिएशन के लिए डाला है कि आप किस चीज क्या समझते हो. क्या शोर, कैकोफोनी या शोर म्यूजिकल है, इसके लिए मैंने ये डाला. तो मैं ना थोड़ा सा इसको कोशिश कर रही हूँ कि विंडो शेयर करूँ तो शायद ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, बिकॉज एट ए टाइम आई कैन नॉट. And what is tense? Tense in music? Yes, tense. Because we know that this is written English, so I can't understand that kind of things. What is tense in music? Okay, मैं हिंदी में एक बार समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था. एक्चुअली इसमें पूछा गया था कि आप किन शब्दों को संगीत के साथ रिलेट कर पाते हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू म्यूजिक. ये इतने सारे यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं. इसके साथ में आप कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आपको लग रहा है कि आप म्यूजिक से रिलेट कर पाते हो. ओके, दैट वाज द क्वेश्चन. ओके. ओके. तो इसमें सब क्वेश्चंस, सब वर्ड्स जरूरी नहीं है कि म्यूजिक के साथ रिलेट हो सके. ओके. Okay. I want to present and see you simultaneously. How can I do? Anybody who is no, share file I am doing, but this is I think a Chrome tab or what? A Chrome tab. Let me see. Yeah, this is, I think. Yes, I can see it now. So let us come to the next this thing. So from the words you have chosen, many of you have chosen that it is regarding listening, it is regarding sound. So the main element of music is sound. In the last class, I told you that main element of music, the core element of music is sound. If there is no sound, then there is no music, isn't it? Do you agree? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am.
सो दैट इज द थिंग. अब इसके लिए मतंग ने बहुत अच्छा सा एक श्लोक बोला है कि नाद के बिना संगीत नहीं बन सकता. ठीक है. तो उसके बाद में हम क्या आते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिक इज उसका क्या शर्त है. सबसे पहला शर्त यही है कि इट शुड बी प्लीजिंग टू वंस ईयर. सो इट इज सूदिंग टू वंस माइंड एंड इट गिव्स यू एस्थेटिक प्लेजर. ये 3 चीजें इंडियन म्यूजिक के लिए बहुत जरूरी जो है शर्त है. ये तीनों शर्तों को जब कोई चीज पूरी करती है, जब कोई साउंड इन तीनों शर्तों को पूरा करता है, तभी हम उसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं. दैट इट शुड बी प्लीजिंग टू योर ईयर, it should be soothing, and it should give you aesthetic pleasure. Then only that sound is a musical sound. Okay, these are the 3 characteristics of a musical sound. Understand? Yes, ma'am. Madam, it is not necessary that गाना में वर्ड्स के बिना साउंड क्रिएट होता है ना. बिल्कुल. मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ जो संगीता कह रहे हो, ছাড়াও একটা সাউন্ড হতে পারে, সেটা আমি বলতে চাইছি. हाँ संगीता जी, जो आप बोलना चाह रहे हैं कि साउंड में वर्ड होना जरूरी है क्या. देखिए, म्यूजिक में वर्ड होना जरूरी नहीं है. साउंड ही काफी है म्यूजिक को एक्सप्रेस करने के लिए. इस बात को मैं पिछली क्लास में समझाई थी, फिर भी इस क्लास में लोगों ने वर्ड्स को भी चूज किया है. बल्कि म्यूजिक जो है वो वर्ड्स को कई बार एक्सप्रेस करने के लिए, हेल्प के लिए जरूरत पड़ जाती है. जैसे कोई नाटक है, कोई पिक्चर है, उसके पीछे वो जब तक आप उसको म्यूट करके, आप लोगों को मैंने कहा भी था कि आज जाके आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करना कि कोई भी सस्पेंस वाला मूवी खोलिए और सस्पेंस की मूवी में आप उसका बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद कर दीजिए. तब आप देखिए आपको लगता है क्या कि उसमें कोई सस्पेंस है, या बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है, आप उसका म्यूजिक बंद कर दीजिए, म्यूट करके उसको देखिए, तो लगता है क्या उसमें म्यूजिक है. अनटिल एंड अनलेस म्यूजिकल जो साउंड्स उसमें ऐड होता है, तब तक आप उस एक्सप्रेशन को, चाहे वो कितना भी एनेक्टमेंट हो रहा हो, उसको आप महसूस ही नहीं कर पाते जब तक वो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो. तो बैकग्राउंड म्यूजिक होने से ही लगता है कि बहुत खुशी का मौका है, या बहुत ज्यादा दुख का मौका है, या बहुत ज्यादा सस्पेंस का मौका है, डरावना है, व्हाटएवर इज देयर, उसके पीछे म्यूजिकल साउंड होता है, वर्ड नहीं होता. वर्ड तो बात की बात है. अपने आप में साउंड ही एक बहुत सक्षम है अपने आप को समझाने के लिए कि वो क्या कहते हैं कि वो म्यूजिक खुशी दे रहा है, एस्थेटिक प्लेजर दे रहा है, या दुख दे रहा है. दैट्स अ काइंड ऑफ आल्सो एस्थेटिक एक्सपीरियंस. तो ये क्या दे रहा है, वो आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो म्यूजिकल साउंड जो है वो अपने आप में उतना, उसमें क्षमता होती है, उसमें पावर होती है कि उस चीज को समझा सकता है. मैम, इवन चार्ली चैपलिन के फिल्म्स में देखेंगे पूरे गाने से ही ये करते हैं. चार्ली चैपलिन के सीरियल्स, फिल्म सब में. जी, साइलेंट एरा की सभी फिल्मों में आप देखेंगे कि म्यूजिक तो है, लेकिन बोलचाल नहीं है, पर फिर भी वो म्यूजिक के साथ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज को. तो इसीलिए ये जरूरी है कि साउंड हो, और साउंड इज द कोर ऑफ म्यूजिक, कोर एलिमेंट ऑफ म्यूजिक. ओके,
नाद नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो म्यूजिक नहीं है। वर्ड के बगैर म्यूजिक होगा। ये जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाते हैं, सितार है, गिटार है, फ्लूट है, उनके पास वर्ड्स थोड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से आपको एस्थेटिक प्लेजर दे पाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो मेन चीज जो मैं बता रही थी कि साउंड और ध्वनि इन संस्कृत एंड हिंदी इज द कोर एलिमेंट ऑफ म्यूजिक। यही इसका मूल तत्व है। ध्वनि संगीत का मूल तत्व है। ध्वनि ना हो तो संगीत नहीं। However, every sound is not musical sound. आप कुछ भी साउंड को लेके आप म्यूजिकल साउंड नहीं कह सकते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक, साउंड इज टर्म्ड एज नाद। जैसे हमने पिछली बार के क्लास में मैंने समझा ही दिया था कि नाद क्या है। म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो भारतीय संगीत में सांगीतिक ध्वनि, जो संगीत में उपयोगी ध्वनि है, उसको नाद कहा गया है। ठीक है, नाद फिर दो किस्म के होते हैं, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। आहत नाद के बारे में मैंने समझाया था, आप लोगों को याद होगा कि व्हेन वी स्ट्राइक टू सेपरेट थिंग्स, देन द साउंड एमिनेट्स एंड दैट साउंड इज आहत नाद। उसको क्योंकि वो किसी चीज को आघात करके पैदा होती है, जैसे कि दो हाथ में ताली लगाए, जैसे कि हम जब गाना गाते हैं तो हमारी श्वास वायु, हमारा जो श्वास है, क्रिया है, वो हमारी वोकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए निकलता है, तो वो वोकल कॉर्ड को वो आघात करता है, स्ट्राइक करता है, तो साउंड निकलती है। तो ये भी एक किस्म का आहत नाद ही है। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम जब तक छेड़ेंगे नहीं हाथों से उसको, तब तक उसमें से आवाज नहीं निकल सकती, तो आहत नाद है। हाथ से हमने आघात किया सितार के तार को, तो सितार बजता है। ठीक है, अगर संगीत की बात करें तो संगीत में आहत नाद की ही जरूरत है, क्योंकि अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद मैंने कहा था कि कॉस्मिक साउंड है। इस पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो एक नाद पैदा होती है, उस नाद को हम साधारण इंसान नहीं सुन पाते, जिसे अल्ट्रासाउंड के नाम से कहा जाता है, जिसे कॉस्मिक साउंड के नाम से कहा जाता है, या मतलब कई नामों से उसको पुकारा जाता है हमारे भारतीय संस्कृत में, जिसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो उसको हम तो साधारण लोग सुन नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि योगी लोग सुनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान लगा लेते हैं और अपनी कंसंट्रेशन से वो उस आवाज तक पहुंच सकते हैं। पर क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि ये वाकई में सुनाई देता है या कि फिर एक मान्यता है कि सुनाई देता है। लेकिन देयर आर मेनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स through which nowadays people can listen to the sound of the cosmic of the cosmos, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो मुझे एनलाइटन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कोई साइंस या फिजिक्स के बैकग्राउंड के हैं तो आप बता सकते हैं मुझे। बताइए निखिल कुमार। तो साउंड की जो रेंज होती है, जो ह्यूमन ईयर सुन पाता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की होती है। मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन पाते हैं। उससे कम या ज्यादा की जैसे कुछ मैमल्स हैं, जैसे व्हेल, डॉग्स, ये सुन पाते हैं, या छोटे बच्चे। तो हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी रेंज कम होती जाती है। रही बात मशीन्स की, जैसे सन की जो आवाज है वो भी बहुत तेज होती है। वो इतनी तेज है कि हम लोग बहरे हो सकते हैं, लेकिन अर्थ तक नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पूरा वैक्यूम है। ठीक है, तो अर्थ तक नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ये सारे नासा वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जैसे हमारे सप्तक होते हैं ना हारमोनियम पे, 3 सप्तक हैं, तो साउंड को उस तरह से डिवाइड कर रखा है। मतलब 3 सप्तक से बाहर भी सप्तक हैं। जैसे एक ब्लैक होल है, उसका पता नहीं क्या माइनस में कुछ, आई थिंक 52 ऑक्टेव है उसका, 50 सेकेंड माइनस में जाके उसका सप्तक है, उसकी आवाज।
इतनी लोअर साउंड है उसकी, तो उन्होंने मशीन क्रिएट की कि उस सब तक को किस तरह से हम उसको हायर पिच पे ला सके तब सुन सके। ये हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है निखिल ने, थैंक यू। तो अब ये आपने जाना कि आहत नाद से ही संगीत का सरोकार है, संगीत बिना आहत नाद के हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाद और साउंड। पिछली बार मैंने बताया ही था कि पिच है, बाय कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बाय लिसनिंग वन कैन डिस्टिंग्विश लो और हाई पिच साउंड। केवल सुन के ही आप बता सकते हैं कि कोई जो साउंड आ रहा है वो ऊंचा है या नीचा है, वो कानों को तेज सुनाई पड़ रही है या धीरे सुनाई पड़ रही है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर टिम्बर, बाय लिसनिंग द साउंड वन कैन कॉम्प्रिहेंड द सोर्स ऑफ द साउंड। ये भी मैंने बताया था कि कुत्ता बोल रहा है या बिल्ली बोल रही है, ये आप उसके सोर्स ऑफ साउंड जो है उसको आप साउंड सुन के बोल सकते हो कि हाँ ये कुत्ते की आवाज है या किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, सितार की आवाज है या फ्लूट की आवाज है, ये आप साउंड को सुन के बता सकते हो। तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इंटेंसिटी, बाय इंटेंसिटी द साउंड of sound one can figure out the magnitude of sound, कि मतलब कितनी तेज वो बोल रहा है, या जैसे कि कहीं धमाका हुआ तो आपको सुनाई देता है कि हाँ ये धमाका हुआ बहुत तेज, या कोई फुसफुसाया तो भी आपको सुनाई देता है, और वो भी एक किस्म का साउंड है। मतलब साउंड को इतने कम में भी किया जा सकता है, इतना बड़ा भी किया जा सकता है। जैसे अभी निखिल ने भी बताया कि वो -52 ऑक्टेव में है, तो साउंड वहां पर भी है, लेकिन हाँ हम लोग सक्षम नहीं है, उसको सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वहां साउंड है। तो इस किस्म से साउंड की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं हम किन साउंड्स को हमने जो है वो किया है, हमारे म्यूजिक में हमने किन साउंड्स को रखा है और कैसे हमारा सप्तक बना। तो सबसे पहले सप्तक हम धीरे धीरे एक, मतलब हमारी अगर हम वेदों को देखते हैं या हमारी पुरानी जो स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, हम सबसे पहले पाते हैं कि 1 स्वर में वेद गान होता था, फिर 2 स्वरों में होता था, फिर 3 स्वरों में होता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मतलब ये इट्स अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनकाइंड कि उसको कौन सा ध्वनि सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर उसको वो चूज करते गए, और इस सिस्टम को करते हुए बहुत साल गुजरे, तब जाके उनको ये 7 साउंड को उन्होंने म्यूजिकल साउंड का दर्जा दिया। ठीक है, इसको म्यूजिकल साउंड का ओहदा दिया, दर्जा दिया कि ये ही 7 स्वर जो हैं धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इस प्रकार से हम जब 7 स्वरों को पहुंचे तब उन्होंने पाया कि ये 7 स्वर जो हैं ये हमारे संगीत के 7 स्वर हैं और ये हमको सुनने में अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से इसको अब हमें एक सिस्टम में डाल लेना चाहिए। तो हमको साउंड पहले मिला। आप देखेंगे कि जब सामवेदों, हम कहते हैं कि सामवेदों के समय से हमारा संगीत चला आ रहा है, मतलब इन कॉन्टिन्यूटी। तो सामवेद के बिल्कुल शुरुआती दिनों में हमें मिलता है कि 1 स्वर का गान होता था जिसे आर्चिक कहा जाता था, मोनोटोनस। उसके बाद में गाथिक, जिस समय 2 स्वर प्राप्त हुए, और उसके बाद 3 स्वर प्राप्त हुए तब उसे सामिक कहा जाने लगा। मतलब कि 3 स्वर तो अब आम हम कह सकते हैं कि पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णम अधः, इस तरह से अगर हम कहें तो नी सा रे सा, नी सा रे, ये 3 स्वर हमें मिल गया। आज हम कह रहे हैं इसको नी सा रे के नाम से, पर उस समय इसका नाम नी सा रे नहीं था, कुछ और था, वो जानने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन
3 स्वर अलग अलग नाम से थे। तो इन 3 स्वरों में जब साम की ऋचाएं पढ़ी जाने लगी तो उसे सामिक कहा जाने लगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ा और लेटर स्टेज ऑफ सामवेद, आप जानते होंगे कि एक एक वेद जो डेवलप किया और वैदिक जो एज है वो उसकी जो स्ट्रेच है वो काफी लंबी है, करीब 1000 साल लंबी है शायद, या इससे भी ज्यादा, इससे भी कम, ये मुझे पता नहीं, पर मतलब ऑलमोस्ट 1000 साल का समय तो था ही, जो जिसको वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो उस समय धीरे धीरे ये चीजें जब डेवलप हो रही थी तो इन 3 से 5, 5 से 7 स्वरों की प्राप्ति हमें मिली। और सामवेदों के पठन में ही जब हम थोड़ा सा और मतलब सामवेद के पीरियड में जब हम मॉडर्न टाइम्स की तरफ आते आते हम पाते हैं कि हमारे स्वर 7 हो गए। पर उन स्वरों के नाम कुछ और थे। उन स्वरों के नाम थे कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ। जब आप लोग इससे एडवांस पढ़ाई करोगे तो तब आप अपने आप इन सब चीजों को जान लोगे। फिलहाल इतना ही कि मतलब सारे गामा पधा निसा नहीं था, बट सारे गामा पधा निसा जो है ये नाम वैदिक समय में ही वैदिक सोसाइटी से अलग जो सेक्युलर सोसाइटी होती थी वहां पर धीरे धीरे इन स्वरों को के नाम आने लग गए थे। तो एक कैसे हमें पता चलता है कि एक श्लोक हमें मिलती है नारदीय शिक्षा में, जिसमें हमें पता चलता है नारदीय शिक्षा या शिक्षा ग्रंथ जो है वो वेद को पढ़ने के लिए की समझ लीजिए। जैसे आज हम कोर्स बुक पढ़ते हैं तो कोर्स बुक के लिए हमें एक की चाहिए होती है जो हमें आसान शब्दों में बताता है कि कोर्स बुक में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से वेद पठन पाठन के लिए उन लोगों ने शिक्षा ग्रंथों की जो है रचना की थी बाद में, और ताकि कुछ और आसानी से अगले व्यक्ति को समझाया या अगले जेनरेशन को या अगले स्टूडेंट्स को समझाया जाए। तो उन शिक्षा ग्रंथों में हमें मिलता है, जिसमें एक शिक्षा ग्रंथ नारद ने लिखा था कि सेक्युलर सोसाइटी में जिस स्वर को सा कहा जाता है वैदिक सोसाइटी में उसको ये कहा जाता है। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है कि इस श्लोक से पता चलता है कि उस समय में वैदिक सोसाइटी यानी कि जो वेदों का पठन पाठन करते थे उनकी एक अलग सोसाइटी, अलग समाज हुआ करता था। हो सकता है कि वो एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, या हो सकता है कि वो मुनि ऋषियों का एक तपोवन हुआ करता था जहां पर वो लोग अलग से वेद पठन पाठन करते थे। लेकिन इनके अलावा भी समाज में दूसरे साधारण लोग होते थे जो समझ लो कुछ बेच के खाया करते थे, कुछ कृषि कार्य करके खाया करते थे। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके के लोग भी होते थे समाज में। तो उस जो उसको सेक्युलर सोसाइटी हम कह सकते हैं। तो वो जो सेक्युलर सोसाइटी था वहां पर जो गाना बजाना होता था वहां पर उन स्वरों के नाम इस तरह से थे। तो क्योंकि कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरीके से नाम था, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके के नाम था, जो कि आज भी हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में इस तरीके के नाम ही यूज होते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ इस तरीके से। पर हम जब हमें पता चला कि सेक्युलर सोसाइटी में नाम पड़े हुए हैं शब्द इन स्वरों के, तो शायद उस समय में लोगों को लगा कि ये जो नाम है वो ज्यादा अच्छे हैं, और उन्हीं नामों में से सॉल्फा सिस्टम निकल के आ गया, सारे गामा पा नी, उसके जो शब्द, उसके जो नोटेशन के लिए उच्चारण करने में सुविधा हो, गाने के लिए सुविधा हो, ये उसी समय आ गया था सेक्युलर सोसाइटी से। तो उसके तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 7 स्वर वैदिक समय में ही हमें प्राप्त हो चुके थे, जो इस प्रकार के थे। जो 7 स्वरों का जो फुल गैमट है उसे हम सप्तक कहते हैं इंडियन पार्लांस में। इंग्लिश में उसे ऑक्टेव कहते हैं। नॉट इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश की कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में सा से लेके, मध्य सा से लेके तार सा तक जो
8 स्वर होते हैं, तो इसलिए उसे ऑक्टेव कहा जाता है। हमारे लिए तार सा, हमारे कॉन्सेप्ट में मध्य सा का ही रिपीटिशन है तार सा, इसलिए हम उसको सप्तक कहते हैं। ओरिजिनली हमारे पास में 7 ही स्वर है। The 7 notes are termed as स्वर इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। जिसे हम वेस्टर्न म्यूजिक में नोट कहते हैं, उसे हम हिंदुस्तानी संगीत में स्वर कहते हैं। If music is considered as language, then notes are the alphabet of that language. ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना कि संगीत। हाँ मैम। नहीं समझ में आया? हाँ मैम, समझ में आया। हाँ, समझ में आया। तो जिस तरीके से हमें लैंग्वेज को लिखने या पढ़ने के लिए अ आ क ख सीखना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें संगीत को सीखने के लिए सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों की सीखने की जरूरत है। मैडम, ये जो सा रे गा मा पा धा नी का जो মানে পুরো কথাটাকে সরল জিনিস, এটা কোথা থেকে? সেই বৈদিক সময় থেকেই এসেছে? हाँ, ये जो है अभी मैं आती हूँ उसमें, इनकी स्वरों का एक्चुअल नेम क्या था वो मैं बाद में आती हूँ अभी आपको। The 7 notes are known in 2 ways, with their formal names and with their regular names. यही जो संगीता जी बात कर रही हैं उसी को का जवाब है ये कि इन 7 स्वरों को हम उसके फॉर्मल औपचारिक नामों से भी जानते हैं और जो हम गाते हैं उस नाम से भी जानते हैं। वो किस प्रकार से है देखिए, वो है रेगुलर नेम क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, और फॉर्मल नेम क्या है, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 स्वर हमें उसी समय, जैसे मैंने कहा कि नारदीय शिक्षा में हमें जो नाम मिले थे वो यही थे, यानी कि वैदिक समय में ही जो सेक्युलर समाज था संगीतापन पांडा, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम, यस। हाँ, यस मैम, यस मैम। जो वैदिक समय में जो सेक्युलर समाज था, उस समाज में सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर आ चुके थे यूज में, और ये उनके छोटे नाम थे गाने के लिए, और इसका फॉर्मल नाम था षड्ज, ऋषभ, गांधार। बिल्कुल जिस तरह से हम अपना नाम एक फॉर्मल नाम रखते हैं और एक निक नेम रखते हैं ताकि आसानी से घर वाले उसको निक नेम से पहचान सके। तो जब हम फॉर्मल नाम रखते हैं तो उसमें बड़ा सोचते हैं कि इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक मीनिंग दिया गया है कि इन स्वरों के नाम में क्या मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे हम षडज कह रहे हैं आज के तारीख में, बाकी संस्कृत शब्द में इसका जो उच्चारण है वो है षड्ज। षड्ज, ज माने जन्म देने वाला और षड माने 6, तो 6 बाकी स्वरों को जन्म देने वाला जो है वो स्वर षड्ज है। यानी कि अगर आपका सा नहीं है तो सा के बाद रे भी नहीं है, गा भी नहीं है, मा भी नहीं है, एक रिलेशन है सा से रे गा मा पा धा नी का, इसीलिए उसका नाम षड्ज है। क्या मैं समझा पाई आपको? Yes ma'am. yes ma'am, yes ma'am, Yes ma'am. Until and unless there is a foundation note, this foundation notes creates in relation to itself other notes. जब सा फाउंडेशन नोट है तो इसका भी एक मतलब, आप आगे जब एडवांस स्टडी करेंगे म्यूजिक का तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नोट्स की को बाद में डिसिप्लिन वे में, नॉट एक्सीडेंटली बट डिसिप्लिन्ड वे में उसको किस तरीके से हम लोग एक सप्तक में लेके आए और उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये एडवांस स्टडी में पता चलेगा। आज ही बिगिनिंग में ही हम ये बात करेंगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। আচ্ছা, আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্যাট অক্টেভ। মানে আমরা যখন সপ্তক স্বর হচ্ছে অক্টেভে কেন আমরা আবার বলছি, এই ব্যাপারটা একটু কনফিউশন। There is
it's a type of conception, because in Western music they take the tar sa also as a part of one gamut. एक स्पैन है, एक स्केल है, उस स्केल के पहला स्वर है सा, मध्य सा, एंड बिल्कुल लास्ट स्वर है तार सा. ठीक है, उनके वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से ये 8 नोट से बनता है. हम लोग क्या कहते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में या इंडियन म्यूजिक में, ये सेम थिंग इज फॉलोड बाय कर्नाटिक म्यूजिशियंस आल्सो, दैट देयर आर 3 रजिस्टर्स, मंद्र, मध्य, तार. एंड मध्य सप्तक का सा जो है, तार सप्तक का सा उसका जस्ट डबल है इन फ्रीक्वेंसी. ओके, understood, Sangeeta? Yes. Now, so yes, if yes, it's yes. repetition, so the because it is a repetition, we do not call it a separate note, but in Western music they take it as a different entity, and though it in their scale also it is just the double frequency of the बेस नोट, लेकिन फिर भी उनका एक सिस्टम है, उनका सिस्टम है टेट्राकॉर्ड का सिस्टम, जिसमें वो सप्तक को इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेव को 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं. फर्स्ट इज टेट्राकॉर्ड, सेकंड टेट्राकॉर्ड. तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण उन्होंने बराबर रखने के लिए उसको ऑक्टेव माना. हम लोगों के यहाँ ये 7 स्वर ही हैं. देखने को तो 7 ही स्वर है, उनका भी 7 स्वर है, डो रे मी फा सोल ला टी. डो जो है वो उसका नेक्स्ट, उसी डो का तार सप्तक है. निखिल, आप इसको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं क्या? क्या ऑक्टेव के बारे में? तो ऐसे इमेजिन करिए कि एक सोसाइटी है, उसमें बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, उसमें आपके फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर में आपके 7 मकान है. ठीक है, तो होता क्या है, इंडियन म्यूजिक में क्या होता है कि हर फ्लोर में 7 मकान है, वेस्टर्न म्यूजिक में 8 मकान है. ठीक है, लेकिन जो 8वां मकान है वो बस पहले मकान की तरह बिल्कुल, ये चीज आपको समझनी है. तो हमने बस वही चीज ले रखी है, मतलब जैसा मैं आपने बताया डो रे मी फा सोल ला टी डो, सेम नोट है, बस हम लोग उसको कैसे मैं समझाऊं, अगर मैं ये बजा बिगिनिंग हो जाए तो एग्जैक्टली, हाँ हमारी तो जैसे अगर मैं ये जो है इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, हमारा जो वो तार सप्तक का बिगिनिंग है वो उस तार सा से हो जाता है, तो हमारे लिए वो अलग एक रजिस्टर है, अलग एक सप्तक है. मतलब मध्य सप्तक, तार सप्तक वहां से शुरू हो जाता है. Understood? Okay. Yes. Thank you, निखिल. अच्छा, अब इन 7 स्वरों के साथ में हमारे पास में कुछ विकृत स्वर भी है. इसमें ना सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करूं कि आपकी स्टडी मटेरियल में आप पाएंगे एक शब्द जिसको कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, वो है परवर्टेड नोट्स. उन लोगों ने पता नहीं क्यों परवर्टेड नोट्स लिखा है. I do not know from which concept it comes, but they are modified note, not perverted. Okay. विकृत स्वर का शायद डिक्शनरी से मीनिंग परवर्टेड होता होगा, but according to in the context of music it should be modified. So I am using the term modified. मैम यही होता है जब कोई गूगल ट्रांसलेट पे ज्यादा डिपेंड रहता है. But these courses are written by very very big people. You will find the names in the this क्या बोलते हैं cover of the book. तो ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ही कहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने आंसर में परवर्टेड स्वर मत लिखना, प्लीज मॉडिफाइड नोट. ओके, तो हाँ मैम, ये विकृत, कोमल और तीव्र. हाँ, तो मैम ये जो विकृत स्वर आपने बोला है, तो क्या तीव्र जो है वो विकृत में ही आता है?
नहीं होता है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि there are 7 शुद्ध स्वराज और प्योर नोट्स and 5 विकृत स्वराज और modified notes. अब विकृत स्वरा are of 2 types. कोमल और तीव्र. हाँ, एक है कोमल, दूसरा है तीव्र. इंग्लिश में फ्लैट और शार्प. ओके मैम, ओके, थैंक यू. ठीक है. अब ये कैसे कोमल और तीव्र बनता है इसको हम बाद में देखते हैं. ये देखिए एक स्केल में किस तरीके से ये देख पा रहे हैं या फुल स्क्रीन करूं? दिख रहा है मैम. दिख रहा है? यस मैम. मैम मैं नहीं देख पा रहा हूँ. आप नहीं देख पा रहे हैं अभी? मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा मैम. ऐसा किस तरह से है? बाकी सबको दिख रहा है? यस मैम. हाँ, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? अरविंद को? हाँ, मुझे मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है. अभी तो आप देख रहे थे. नहीं, मैं स्क्रीन कब से नहीं देख पा रहा हूँ. मैं स्टार्टिंग से स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ. मैं तो आपको देख रहा हूँ, आप दिख रही है हमको. लो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए, आप क्या मोबाइल पे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोबाइल की स्क्रीन पर आप दिख रही हैं मैम. आपका अच्छा, ठीक है. अरविंद एक काम करिए, उसको एक बार उंगली से स्लाइड कीजिए. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में शायद आपको स्क्रीन दिखेगा. कर रहा हूँ मैम, लेकिन नहीं हो रहा. भाई कोई भी जो मोबाइल से देख रहे हैं थोड़ा सा हेल्प कर दो. मैम हो सकता है इन्होंने आपके स्क्रीन को पिन कर दिया हो. एग्जैक्टली. अनपिन करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका जो शेयर हो रहा है वो दिख जाए. हाँ बिल्कुल, आप दिख पा रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. यू वेलकम. हाँ, अब आप देखिए कि ये है स्केल. ये स्केल समझ में आ रहा है आपको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, तो ये है फाउंडेशन नोट सा. ये फाउंडेशन नोट सा है. फिर ये रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी. ठीक है. अब इसके बीच में ये सा से रे के बीच में काफी जगह है जहां पर एक और नोट आ सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर कोमल रे डाला. मैं ये आपको देखिए, एक बात है, आप लोगों में से सभी लोग काफी मैच्योर हैं. ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों की म्यूजिकल बैकग्राउंड भी हो, लेकिन ये कोर्स जो बना था वो बना था बिल्कुल क्लास 10th के बच्चों को समझाने के लिए. तो इसमें श्रुति या माइन्यूट जो बातें हैं वो यहाँ पर है नहीं. तो मैं आपको अभी बताते, मतलब जो ये पावर पॉइंट आप देख रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हैं नहीं. इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन करती हूँ. ठीक है. तो ये जो सा से रे का जो जगह है उसके बीच में ये कोमल रे है. रे से गा के बीच में जो जगह है उसके बीच में कोमल गा आती है. फिर गा से माँ की दूरी काफी कम है, यहाँ पर कोई इसीलिए नोट नहीं है. उसके बाद में माँ से पा की दूरी इतनी है कि इसमें अच्छे से एक स्वर आ सकता है. तो माँ अपनी जगह से ऊपर चला गया पा की तरफ, इसलिए माँ जो है वो तीव्र है. कई बार हम मतलब कई प्रांतों में, खास करके महाराष्ट्र में, तीव्र माँ भी कहते हैं और शुद्ध माँ को कोमल माँ भी कहते हैं. शुद्ध माँ तो कहते हैं, कोमल माँ भी कहते हैं. ठीक है. तो ये शुद्ध माँ हो गया कोमल की तरफ, और चढ़ा हुआ जो माँ है उसको तीव्र माँ कहते हैं. तीव्र का मतलब ही है शार्प या चढ़ा हुआ. उसके बाद पंचम आया. फिर पंचम और धैवत, इन दोनों के बीच में काफी जगह है. इसमें पंचम अपनी जगह से हिला नहीं. नोट करना इस बात को, अभी मैं खुलासा करती हूँ आपसे.
पंचम अपनी जगह से हिला नहीं, पंचम पा शार्प नहीं हुआ या तीव्र पा नहीं हुआ, लेकिन धा अपनी जगह से उतर गया। उतर के यहाँ पर ये कोमल धा है, और धा और नी के बीच में जो जगह है, यहाँ पे भी आप देखिए कि नी अपनी जगह से ऊपर नहीं गया पर नीचे आया है, और ये कोमल नी बना है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको देखने की बात है कि जो स्वरों के बीच में दूरियां हैं वो एक जैसा नहीं है। ये नहीं है कि सा से रे की जो दूरी है वो रे से गा की दूरी की तरह सेम दूरी में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। सभी स्वर अपनी अपनी जगह पर जो बैठे हैं वो एक दूसरे से एक डिफरेंट दूरी पे बैठे हैं। उस दूरी को नापने के लिए एक भारतीय अवधारणा है जिसको कहते हैं श्रुति, भारतीय कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं श्रुति। तो उस श्रुति के आधार पर उसको हम पहचानते हैं कि वो इतनी श्रुति दूरी पे है, वो इतनी श्रुति दूरी पे है, और उस श्रुति की दूरियों के आधार पर उसका स्थान होता है एक स्केल में। फिर आपने ये देखा कि सा कोमल नहीं है, तीव्र नहीं है, पा भी कोमल नहीं है, तीव्र नहीं है। तो एक स्केल को पूरी तरह बैलेंस्ड रखने के लिए ये सोचा गया कि सा और पा जो है उस खूंटी, उस स्केल का जो है दो मेन खूंटी है, उसको नहीं हिला सकते। उसको हिला देंगे तो पूरा स्केल ही हिल जाएगा। तो फाउंडेशन नोट जो है, फाउंडेशन नोट को एक जगह होना पड़ेगा, तभी जाके उसके सहारे बाकी 6 स्वरों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो अब बाकी 6 स्वरों में भी एक बैलेंस लाने के लिए बीचों बीच जो एक बहुत क्या कहते हैं डिपेंडेबल स्वर है वो है पा। तो इसलिए पा को भी अपनी जगह पर टिका दिया गया। पा अपनी जगह से न नीचे उतरता है न ऊपर जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे आप बाद में अगर गाना सीखते हैं तो आप देखेंगे कि एक्सक्यूज मी শ্যামশ্রী একটু পরে কথা বলছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি। तो आप देखेंगे अगर आप आगे बढ़ते हैं संगीत को लेके और सीखते हैं तो आप देखेंगे कि वो कहेंगे ये रे थोड़ा उतरा हुआ है, वो थोड़ा खिसका हुआ है। इस तरीके की बातें जो हैं वो जो म्यूजिशियंस होते हैं वो बात करते हैं। तो पंचम के लिए कभी भी नहीं कहेंगे कि पंचम खिसका हुआ है, षड्ज के लिए भी कभी नहीं कहेंगे कि षड्ज खिसका हुआ, इस राग में षड्ज खिसका हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि षड्ज जो है वो मूल स्वर है, उसी मूल स्वर से हम आगे चल रहे हैं। वो हिल जाएगा तो सब कुछ हिल जाएगा, तो उसको हिला नहीं सकते। इसी तरह हम पंचम को भी हिला नहीं सकते, इसीलिए उसका कोई कोमल या विकृत रूप नहीं होता। तो सा और पा इन दोनों स्वरों के लिए अचल स्वर ये नाम दिया गया है, ये टर्म दिया गया है, अचल स्वर। और बाकी जो स्वर हैं जिनके विकृत रूप भी होते हैं उनको चल स्वर कहा जाता है। अब ये चल और अचल स्वर के बारे में भी आपको बताऊं कि अचल क्यों बोला, चल के कौन जा रहा है। लेकिन हमारी जितनी भी म्यूजिक के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस हुई है वो वीणा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो वीणा पे क्या आप देखेंगे कि उसकी जो फ्रेट्स हैं उसको हिलाया जा सकता है। आप लोगों ने वीणा देखा होगा या सितार देखी होगी तो आप देखेंगे कि उसके फ्रेट्स को हिलाया जा सकता है अपने राग के हिसाब से। अगर किसी राग में कोमल रे लग रहा है, कोमल धा लग रहा है, तो अपनी उसी फ्रेट को वो अपनी जगह से उतारेंगे, चढ़ाएंगे। तो क्योंकि उस फ्रेट को या फ्रेट शब्द को जो है हिंदी में सारिका कहा जाता है। तो अगर फ्रेट को हम हटा रहे हैं, या पर्दे भी कहा जाता है, संगीता पर्दा भी कहा जाता है इसको, तो बांग्ला में भी आप पर्दा बोलते होंगे, सितार के तानपुरा पे भी तो रहता है ना,
नहीं, तानपुरे में नहीं होता है, नहीं तानपुरे में नहीं होता है पर्दा, सितार में होता है, वीणा में होती है। तो आप देखेंगे कि আচ্ছা একটা কথা বলছি, একটা কথা বলা হচ্ছে যে এই যে আপনি বললেন যে সা এবং পা দুটো অচল স্বর, তাহলে সা এর যদি মানেটা হয় স্বরজাতির যদি উৎপত্তি হয় তার থেকে বাকি স্বরগুলো উৎপত্তি হচ্ছে, তাহলে পাটারও কি সেরকম ভাবে হতে পারে ইউজ? ना ना, षड्ज की उत्पत्ति, षड्ज से बाकी 6 स्वरों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि बीच में भी आपको एक फर्म पॉइंट चाहिए। उस फर्म पॉइंट को देने के लिए पंचम को किसी ने भी नहीं छेड़ा। 7 स्वरों में पंचम बीचों बीच आता है, तो इसलिए उसको किसी ने नहीं छेड़ा। ठीक है, तो अब সাটাই শুধুমাত্র উৎপত্তি স্বর হবে। हाँ, सा ही केवल ऐसा स्वर है जो उत्पत्ति करता है बाकी 6 स्वरों का। अच्छा अच्छा ठीक। तो अभी मैं कहा थी, हाँ, जो फ्रेट है, तो वो फ्रेट जो है वो क्योंकि हिलता है अपनी जगह से, क्योंकि उसको ट्यूनिंग करने के लिए, कोमल तीव्र करने के लिए फ्रेट को ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसीलिए उसको चल स्वर कहा गया। और सा और पा क्योंकि फिक्स हो जाती है, इसलिए उसको अचल स्वर कहा गया। ठीक है, पर ये सब चीजें आपकी जानकारी के लिए है, ये कोई अभी पूछेगा नहीं, बिकॉज आप सभी लोग लॉजिकली थिंक करते होंगे, तो आपको लगेगा कि एक स्वर को अचल स्वर बोला, क्यों बोला गया? स्वर कहाँ चल के जाता है? स्वर तो कहीं चल के नहीं जाता। वो स्वर इस तरह से चलता है कि वो अगर वीणा के ऊपर आप उसको ट्यून करते हैं, वीणा को राग पे, तो आपको फ्रेट को ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसलिए उसको चल या अचल स्वर कहा गया है। हमारी प्राचीन समय में संगीत को लेके जितना भी एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है श्रुति स्वर के आधार पर, वो सब कुछ जो है एक वीणा को पर ही किया गया है। जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया है वीणा पे ही किया है, यहाँ तक कि नॉट ओनली इन इंग्लिश इंडिया बट ऑल्सो इन ग्रीस। पाइथागोरस ने जब स्वरों के ऊपर काम किया था, उन्होंने भी एक वीणा पर ही काम किया था। वहां के लोग उसको वीणा नहीं कहते हैं, कितारा हार्प, कितारा हार्प उनका जो है वो मोनोटोनल हार्प था। उसका नाम बड़ा झमेले वाला है, मुझे याद नहीं रहता है, तो उस पे उन लोगों ने काम किया है। तो इसलिए तार वाले यंत्रों पे ही ये काम किया जाता है। खैर, तो इस प्रकार से ये हमारे 7 स्वर और 5 विकृत स्वर। तो देखिए, अब सप्तक में कई बार आपके पास में आएगा क्वेश्चन कि सप्तक किसे कहा जाता है। तो सप्तक आप जब कहेंगे तो 7 स्वरों की क्रम से जो वो है, क्या कहते हैं, क्रमिक 7 स्वरों का जो समूह है उसे सप्तक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सप्तक में फिर आपको ये लिखना चाहिए कि सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, परंतु इसी के साथ 5 विकृत स्वर भी होते हैं, इसलिए एक सप्तक में 7 + 5 12 स्वर होते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंक को देखते हुए कहिएगा। अगर वो क्वेश्चन एक ही मार्क का है तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन देंगे, सप्तक 7 स्वरों के समूह हो गया। और अगर वो 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें फिर आप एक्सप्लेनेशन करिए कि क्यों सप्तक में कितने स्वर हैं, विकृत स्वर भी है और कोमल वो भी है, शुद्ध स्वर भी है। आगे क्या है? आगे है सप्तक के 3 स्थान। तो ये तो अभी हम बात करते करते कर ही चुके हैं कि साधारणतया संगीत में, हालांकि हमें उन्होंने बताया अभी, क्या नाम था उनका, निखिल ने बताया अभी कि नासा ने -52 ऑक्टेव निकाल चुके हैं अपने यंत्र से, लेकिन मनुष्य का जो कान रूपी यंत्र है वो सिर्फ 3 सप्तक में ही स्वरों को सुन सकता है। तो ये 3
सप्तक जो है उसको स्पेसिफिकली स्थान कहा जाता है, ठीक है। और 3 स्थान है, मंद्र स्थान यानी कि लोअर पिच, मध्य यानी कि मीडियम पिच, और तार यानी कि हाई पिच, ठीक है। तो इस प्रकार से आज स्वर और सप्तक की बात हमने कर ली। ये इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए की है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली भी समझा सकूं कि स्वर और सप्तक, नाद से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक के 7 और 5 12 स्वर, ये किस प्रकार से बनता है। अब आप पूछिए आपके क्वेश्चंस। मैम, जी hello, ma'am. I would like to ask something. बोलिए Yes, देबूजी। ma'am, would you like to clarify the difference? Yes, ma'am. Would you like to clarify the differences between male and female scales in Olankars? Male Hello, and ma'am. female? I mean, there are 2 types of vocals, like male and female vocal. ओ बेटा, इसमें क्या है, मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, दोनों का वॉइस अलग है, तो उनका वॉइस रेंज भी अलग है, तो इसलिए वो मेल का अलग हो गया, फीमेल का। आपकी बात मुझे नहीं समझ में आई, फिर से बताइए। Yes, there are 2 types of vocal, like male vocal and a female vocal. If I sing Saregamafa, I have to sing my own vocal, male vocal. What do you think about these things? नहीं, इसका कोई मतलब there is no meaning in I think he tried to ask एक that. सेकंड संगीता, But it संगीता, really- संगीता एक सेकंड संगीता। Okay. देबूजीत, ये मेल फीमेल करके कुछ होता नहीं है। आपका स्केल क्या है? आप मोस्टली क्या होता है कि फीमेल का स्केल, मोस्टली, इट इज नॉट ऑलवेज, मोस्टली इंडियन फीमेल स्केल्स आर जी, जी शार्प, बी और ए शार्प, ए शार्प, ज्यादा से ज्यादा बी। और फीमेल मेल स्केल क्या होता है, सी से शुरू होता है, नेचुरल सी, देन सी शार्प, सम पीपल दे सिंग इन डी आल्सो। तो ये उन लोगों का वॉइस का ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली, बट यू कैन नॉट टेल से इट एज अ रूल, बिकॉज परवीन सुल्ताना जी सिंग्स इन सी शार्प and Hemant Kumar Mukhopadhyay used to sing in B flat or A sharp. These words are used, चलती भाषा में इसको यूज किया जाता है, बट टर्मिनोलॉजिकली इसका कोई मतलब नहीं है। Am I clear? मैम, एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि तानपुरा ड्रॉइड एप्स जो है उसमें भी मेल और फीमेल ये किए गए हैं। Okay. Now I understand. What happens that if you are using an app, for that purpose they use some words which are colloquially used, that is not terminological words. Okay. So in music there is no male female words, but in while you are using some app and they want to tell you some this thing, tanpuras in male scales are tuned in different way, because that should suit to the deep voice of males. ठीक है, तो इसके लिए उसका तार भी डिफरेंट होता है, उसका साउंड भी डिफरेंट होता है, उसका ऑक्टेव भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये मैं बजा के बताती हूँ आपको क्या होता है।
तानपुरा ड्रॉइड में तो पिचेस लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर कोई मेल फीमेल तो लिखा नहीं है। यहाँ पे नहीं मैम, दूसरे एक ऐप में फीमेल ड्रॉइड करके, फीमेल तानपुरा फीमेल ड्रॉइड। ड्रॉइड करके, हाँ फीमेल ड्रॉइड करके एक अलग से ही वो है, क्या कहते हैं, ऐप है। उसका कारण ये है कि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी, फीमेल तानपुरे का जो तार है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को लेता है, और मेल तानपुरे का जो तार है वो लो फ्रीक्वेंसी के तारों को लेता है, क्योंकि दैट कॉम्प्लीमेंट्स द वॉइस ऑफ द मेल और द फीमेल, because males have deeper voice, so they use low frequency tanpura like this. Scale is same, but the frequency is low. But when you use the same scale in female, do you understand the difference? Yes ma'am. The scale being same, the frequency, the low frequency thing makes it different. Okay. Okay. ম্যাডাম এটা কি ম্যানুয়াল তানপুরার ক্ষেত্রেও হচ্ছে এই ডিফারেন্সটা? Yes, in manual tanpura also you will find that for matching the male voice, the tumba of the tanpura is bigger in size. My tanpura is inside, so I will show you next time. Now the female tanpura has a smaller tumba, a male tanpura has a bigger tumba, and the height of male tanpura is also complementing to the height of a male person, so that he can reach the fingerboard accordingly. But in female tanpura, the height of tanpura is also lower, so that it can complement the lower frequency strings. Okay, the strings which produce higher frequency sound need different kind of strings, और वो उसका जो साइज होता है, तानपुरे का साइज होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है उसको। ठीक है मैम। And the metals are also different in male and female tanpura strings. The gauge of the strings are also different in male and female tanpura strings. এই জন্য মেয়েরা কি মেল তানপুরাতে প্র্যাকটিস করতে পারবে না, কিংবা ফিমেলরা মেল তানপুরাতে, এই ব্যাপারটা থেকে যাচ্ছে কি? Yes, yes. আচ্ছা। Any more questions? मैम Arvind? मैम ये श्रुति के बारे में मैं कुछ पूछना चाह रहा था। बोलिए। मैम मैंने पढ़ा था कि मतलब 22 श्रुति होती है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। हाँ होती है। तो मैम मुझे एक्चुअली श्रुति समझ में आया नहीं, मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मतलब 22 श्रुति किस तरह से है ये समझ में नहीं आया था मुझे, अगर आप कुछ बता पाए उसके बारे में। देखिए, बता तो मैं पाऊंगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एक शुरुआती स्तर का प्रोग्राम है। इस शुरुआती स्तर में अगर मैं श्रुति समझाने बैठूं तो आप लोगों को परेशानी होगी, फिर भी मैं बहुत कम शब्दों में बता रही हूँ। प्लीज डू नॉट गो इनटू द डिटेल टू, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, क्योंकि वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है अपने आप में और एडवांस स्टडी में जाता है। जब तक आप राग नहीं सीखते हैं तब तक श्रुति के व्यवहार को भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सबसे मतलब एक क्या बोलूं, टर्मिनोलॉजी में ना जाके सीधा सीधा बोलते हैं कि हमने कह दिया सा है, रे है, सा रे गा मा, 4 साउंड आपको बता दिया। हमने कहा ह्यूमन ईयर्स इनको सुन सकते हैं, इट इज प्लीजिंग टू ईयर्स, सो दीज आर द 4 साउंड्स यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, पर आप देखेंगे
आप देखेंगे कि इन दो साउंड के बीच में जो दूरी है उसमें भी तो कुछ साउंड होगा ना, उसमें भी तो कुछ साउंड होगा, बिना साउंड का तो कोई दूर वो चीज नहीं होगा। तो इन दो आपने मैंने ये आपको जो बताया था अभी ग्राफ, उसमें भी आपने देखा होगा कि 7 स्वरों में से कुछ एक स्वरों की दूरी जो है पास पास है और कुछ एक स्वरों की दूरी दूर दूर है। तो उसको हम कैसे नापेंगे? उसको हम श्रुतियों के आधार पर नापेंगे। अब सबसे पहले श्रुति का कॉन्सेप्ट जो है वो भरत ने दिया था इंडिया में, मतलब बाहर किसी और ने भी दिया होगा, उनसे पहले भी दे सकते हैं, उनके बाद में भी दे सकते हैं, उसमें मैं जा नहीं रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो भारत में जब माइक्रोटोन्स की बात आई, मतलब कि जब ये कहा गया कि इसी स्वर को मैं क्यों गाऊं, कुछ और भी स्वर हो सकता है, मैं उसको भी मान सकती हूँ, कुछ और भी साउंड को मैं स्वर मान सकती हूँ, तो क्यों इसी स्वर को मैं साउंड मानूं? तो तभी साउंड के बारे में उन लोगों की एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई होगी, और उस एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने पाया होगा कि जो मेजर साउंड्स है जिसे ह्यूमन ईयर्स डेसिफर कर सकते हैं और जो कि सुनने में अच्छा लग रहा है, म्यूजिकल लग रहा है, एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है, वो ये 7 नोट है, ठीक है। लेकिन इस 7 नोट के बीच में भी बहुत सारे माइन्यूट साउंड्स हैं, पर उस साउंड को डेसिफर नहीं कर पा रहे हम लोग। फिर भी जितने भी डेसिफर कर सके उसकी संख्या भरत ने अपने कान में सुन के, कोई मशीन लगा के नहीं, अपने कान में सुन के उन्होंने कहा कि इसमें 22 माइन्यूट साउंड है। और कैसे कहा? वही वीणा के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वीणा हैज बीन द मेन क्या बोलते हैं apparatus फॉर एक्सपेरिमेंटिंग साउंड। तो वीणा के सहारे ही उनको 22 माइन्यूट साउंड प्रोड्यूस करने से और प्रोड्यूस करना समझ में आया और अपने कानों से भी सुनना समझ में आया। तो these 12 micro frequency he could hear was termed as Shruti by him। और भरत का क्या समय है? भरत का समय कुछ लोग बताते हैं कि एक भरत नहीं हुए, बहुत भरत हुए। वही बात हो जाती कि आप लोगों की एज को देखते हुए मैं भूल जाती हूँ कि मैं मुझे की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भरत के लिए कहा गया है कि वो 2री शताब्दी में हुए थे, और थोड़े दिनों पहले तक जब हम पढ़ते थे तब ये कहा जाता था कि 200 BC से 200 AD तक के बीच में कोई समय पे भरत रहे होंगे। पर अब ये कहा जाने लगा है कि भरत 200 AD से और 600 AD के बीच में कभी रहे होंगे। तो 400 साल का फर्क है, और 400 साल में भी उनका जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है उसमें धीरे धीरे भाषा का बदलाव नजर में आता है, जिससे ये अब एक डिड्यूस किया गया है कि भरत मस्ट नॉट हैव बीन वन पर्सन भरत may have created a string of students generation after generation, and that whole string of students have been called as Bharat। क्या सच है ये तो अनुमान पे है, इसीलिए मैं मतलब हमारे आंखों के सामने सिर्फ नाट्य शास्त्र किताब है, जिस किताब को देख के हम कहते हैं कि भरत ने साउंड का एक्सपेरिमेंटेशन किया और उन्होंने पहली दफा बताया कि देयर आर 22 माइक्रोटोन्स व्हिच अ ह्यूमन ईयर कैन डिसिफर। ठीक है, लेकिन ये तभी इल्यूमिनेट होते हैं, साउंड्स आर देयर इन लेटेंट उसमें अवस्था में, वो एक दूसरे के साथ इल्यूमिनेट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सा है, सा जो है वो 7 स्वरों का जन्म देती है। अब मैंने सा के बाद कोमल रे लिया, तो कोमल रे के साथ में
जो साउंड कॉरेस्पॉन्ड करता है वो एक दूसरा साउंड होगा, तो उस हिसाब से वो शायद धा का, कोमल धा का वो रूप लेगा जो कोमल रे के साथ में कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो तब वो अपने आप इल्यूमिनेट होता है, राग के हिसाब से इल्यूमिनेट होता है, जागृत होता है, या कहें कि उस पर प्रकाश पड़ती है। तो इसलिए फिर फाइनली उन्होंने कहा कि 22 श्रुतियों को 7 स्वरों के बीच में हम डिवाइड करते हैं, और इस तरह से सा से रे उन्होंने करा कि सा, मा और पा, इन तीनों स्वरों में 4-4 श्रुति, और बाकी स्वर में चतुष 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 चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वे द्वे ऋषभ गांधारो त्रि त्रि द्वे 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 निषाद गांधारो त्रि ऋषभ धैवतो। ठीक है, मतलब सा मा पा इनमें 4-4 श्रुति है, रे और धा में 3-3 श्रुतियां हैं, गा और नी में 2-2 श्रुतियां हैं, और इन श्रुतियों की पहली श्रुति पर ही भरत के हिसाब से स्वरों की लास्ट श्रुतियों पर भरत के हिसाब से स्वरों का अवस्थान होता था। परंतु आज के तारीख में आज हम भातखंडे जी को फॉलो करते हैं। भातखंडे जी विष्णु नारायण भातखंडे, जो कि 18वीं शताब्दी, लेटर पीरियड ऑफ 18th century, no 19th century he came, and he then again reinvented our old scriptures and old granthas, treatises, and उनके हिसाब से फिर धीरे धीरे ये हुआ कि श्रुतियों के ग्रुप के पहले श्रुति पर ही शुद्ध स्वर का अवस्थान है। तो ये हुआ ना कंट्रोवर्सी की बात है, तो ये तभी हो सकती है जब आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, या आप लोग मेरी बातों को सुन के बाद में अगर आप चाहें तो नेट में ढूंढिए भरत के द्वारा द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रुति बाय भरता, उस पे बहुत आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, आप उनको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है मैम। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है मैम। एनी मोर क्वेश्चन? मैडम क्वेश्चन আছে देवजीत? হ্যাঁ ম্যাডাম, হ্যাঁ। No more, ma'am. ওটা তালের উপরে क्वेश्चन। देवजीत बोलिए पहले। संगीता Hello, मैं ma'am. आऊंगी आपके पास, देवजीत बोलिए पहले। ओके ओके। देवजीत, आई एम वेटिंग। Yes, ma'am. All are cleared. Okay. So can I go to Sangeeta now? यस मैम। Yeah, Sangeeta, বলো। বলছি যে যদি যখন একটা গান কম্পোজ করা হয় তার তালটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? তাকে যে একটা তালে ফেলবো সে কিসের উপর ডিপেন্ড করে? মানে একটা রাগ যদি ত্রিতাল হয় কিংবা ওটা চৌতালে হলো, তাহলে কিসের উপর সেটা ডিপেন্ড করে? संगीता, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कोशिश करो थोड़ा सा हिंदी में बोलने के लिए, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो बाकी। Okay, I'm trying, ma'am. It is by chance that I am also Bengali and ये जो गाना जब हम कंपोज करते हैं और कोई और म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसमें ताल वो कौन सा देते हैं? ताल कैसे वो सिलेक्ट करते हैं? ये ताल में ही ये गाना जाता है, ये राग में ये ताल जाता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं वो लोग? देखिए, हर गीत का एक छंद होता है, हर गीत में वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स को किसी न किसी छंद में बांधा जाता है कि नहीं? तो उस छंद को देखते हुए ताल को निर्धारित किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं अगले सैटरडे को। ओके ओके मैम। इसी समय, ओके मैम। इसी समय पे
मैं थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, मैं आप so लोगों much, को madam. भेज दूंगी। Okay, ma'am, thank did you. you have Nikhil? Hi. I want to ask you, did you have something different Yes, ma'am. to take home? मतलब मेरे को एक टेट्राकॉर्ड वाला वो समझ आया, क्योंकि टेट्राकॉर्ड मेरे को आइडिया नहीं था इस चीज का, तो वो चीज मेरे को काफी कूल लगा कि हाँ इस उसको कैसे हमने सप्तक से ऑक्टेव में डिफर करा। ठीक है, बाकी हाँ ये श्रुतियों की हिस्ट्री मेरे को माइक्रोटोन्स के बारे में पता है, लेकिन मेरे को वेस्टर्न में पता है माइक्रोटोन्स कैसे यूज करते हैं, लेकिन हाँ ये जो भारत वाला हिस्ट्री था वो मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि उसका मेरे को आइडिया नहीं था, तो काफी कूल था। थैंक यू। थैंक यू मैम। और आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों की मैच्योरिटी को देखते हुए थोड़ा सा ज्यादा ही बता रही हूँ। आपकी जो लर्निंग मटेरियल है वो इतना सब कुछ उसमें होगा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग मतलब मैच्योर हो चुके हो और आप हर चीज के लॉजिक को समझना चाहते हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको खोल खोल के, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, ओके, बाय। थैंक यू मैम। Thank you, Thank you ma'am. madam, Yes, bye. Meet you next Saturday, ma'am. thank you Sure, madam. sure.